ये कह रहा हूँ, जंगपुरा विधानसभा की बात हो रही है, तो जंगपुरा विधानसभा में खड़े हो तो यहाँ से तविंदर सिंह मारवाही जी ही जीतेंगे। चाहे सब्जी वाला, पटरी वाला, दुकान वाला या बच्चा, पूछ लो देखते हैं यहाँ पे मारवाही जी कौन है, सब बता देंगे, पर इनका कोई बता ही नहीं पाएगा। इसको निकालो यहाँ से, या झाड़ू को। मैं आपको बताऊं, झाड़ू ने बेड़ा गर्क कर डाला है। झाड़ू कुछ सफाई नहीं किया। नथिंग, पैसा खा गए हैं, अंधाधुंध पैसा खा गए हैं। डू यू थिंक सिसोदिया कैन ब्रिंग एनी चेंज? नथिंग, सब अब वैसे ही है। ये कुछ नहीं हो रहा है, जबरदस्त सब गड़बड़ है सारी, हेराफेरी करके जीत जाते हैं लोग। कुछ भी नहीं, रोडों का कोई प्रॉब्लम नहीं दूर हो, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो हो, हमारे लिए कोई नहीं है। ये गरीब गुप्ते के लिए सब कुछ है, बस उनको पैसा दे ही चलो, सब काम करी चलो, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। जो हमारा मीडियम तबके का जो है हम मर रहे हैं। पूरे दिल्ली में आपको कौन चाहिए सरकार बनने में? हमें बीजेपी चाहिए। बीजेपी ही चाहिए। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री फेस ही नहीं है। मुख्यमंत्री फेस नहीं है, कोई बात नहीं पड़ता है, सब इंटेलिजेंट है, कोई भी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आइए, देखिए क्या हाल हो रहा है। देखिए सड़कों का, देखिए सड़क कितने दिनों से खराब हुई हुई है। अच्छा, ओके, इट्स फुल ऑफ पॉटहोल्स। हाँ, गटर देखिए, आज 6 महीने हो गए हैं। हाँ, 6 मंथ से हो गया ऊपर। इनकी शॉप आगे, इनके आगे गटर बह रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। आप भी मानते हो कि आप एमएलए कुछ नहीं किया, विधायक यहाँ कुछ नहीं किया? प्रवीण कुमार ने बिल्कुल नहीं किया। ये बस इतना बोलूंगी कि जो सिटीजन के लिए चाहिए, व्हाट दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट इज बेटर रोड्स। सो whoever the candidate is in Jangpura, BJP, Congress, AAP, I hope you're watching this and you'll fix this road. When you see these images of a Sheesh Mahal, of this amount spent on beautifying the CM house, does that matter? I think it will affect people thinking. Are you thinking about it? Because 10 years back when this party came into the power, the basic thought was like he was a Aam Aadmi, which creates a, sense of security in Aam Aadmi, that हमारे जैसे ही कोई आ रहा है. But when you have seen 10 years, every घोटाला, this sharab thing, this Sheesh Mahal and so many other things, that will definitely affect the voter. खा लिया आपने? हाँ, खा लिया, इधर जलेबी खाना अच्छा था। अच्छा था। आप क्या रेकमेंड करोगे? जलेबी? अच्छा, ओके, सो आई गो विद जलेबी देन। थैंक यू। Thank you. The perks of coming into all these parts of Delhi is now I'll be able to try all the good food from the small stalls. It's time for a jalebi break. I know it's early in the morning, so my calorie intake is taken care of now. बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा है। So we're in Nizamuddin West, part of the Jangpura constituency, and I was amazed that in this residential area full of homes, there's a community center with even a shooting range. How amazing is that? Wow. She's hit a bullseye there. I'm going to give it a shot. Just a small attempt to shoot the shot. Let's see which political party can actually do that here in Delhi. बेसिक फंडामेंटल्स हैं शूटिंग की। Fundamentals of shooting. Okay. Not bad. Thank you. Let's get back down to business. What you see, however, when the AAP, BJP, Congress are talking about is issues like Sheesh Mahal, is issues of corruption. There's a lot of name calling, whatnot. Does all of that matter to you? Actually, these are very silly questions which are being raised. It doesn't bother the interest of the residents of Delhi. The only thing, very importantly, I will say, because the Chief Minister said once that he don't need a Sheesh Mahal or a very... But he's an Aam Aadmi. Yes, he is an Aam Aadmi. He will live in a four-bedroom flat. So that thing makes a difference. Delhi had a budget of around 30,000 crores when AAP took over the government. Last year it was 80,000 crores. So if the budget increases by 50,000 crores, how does 33 crore matter into 80,000 crores? So you're saying if people benefit, that's all that matters? Yeah.
Okay. We need clean air, we need clean water, we need sewage, drainage proper, I agree. Yeah. education and healthcare. It's the basics. Where Yeah. everybody What do you must. think? Expectations are too high and we need results. With us is Mr. Tarvinder Singh Marwa. Sir, जंगपुरा जब हम गए थे, काफी इश्यूज है, काफी मामले हैं. आपकी सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है यहाँ? 11 साल हो गए इस जगह पर, जब से प्रवीण कुमार आया था, जो मैं काम करके गया था वहीं पर काम सारे अब रुके हुए हैं. प्रॉब्लम गंदे पानी की है, आपको लोगों ने बताया होगा. पार्किंग की है, जो हम पार्किंग का उद्घाटन किया था आज तक वो पार्किंग शुरू नहीं करा सका, बंद पड़ा हुआ है वहाँ पर. इसी तरह राशन कार्ड बंद कर दिए लोगों के, और उसके बाद राशन कार्ड जो बुजुर्गों की पेंशनें थी वो बंद करा दी, और उसके बाद झूठ पे झूठ बोला. यहाँ पर लोगों को मिला नहीं, सड़कों का बुरा हाल है. अगर मनीष सिसोदिया यहाँ पे अभी आ गया है तो क्या आपको लगता है कि फिर अभी और चैलेंजिंग हो गया जंगपुरा में? नहीं, उन दोनों की जितनी वोटें होंगी मुझे अकेले डलेंगी. ये लिख लो, हाँ लिख लो, अकेले आपको मिल जाएगा. हाँ, जितनी उन दोनों को डलेंगी. 11 साल मैंने काम किया है, जो 15 साल, और जो 11 साल ये इसने काम नहीं किया, तब भी मैं काम करता रहा. मैं घर नहीं बैठा. लोगों की समस्या, जहाँ गंदा पानी आता था, लोगों के बीच में जाके उसकी समस्या को हल करता था. इसलिए आज लोग मुझे वो इतना प्यार कर रहे हैं. जब आम आदमी पार्टी से मैं बात कर रही थी, जो कार्यकर्ता है यहाँ पे, वो बोल रहे थे कि मारवा जी इसलिए बीजेपी ज्वाइन किया है क्योंकि नहीं तो ईडी आपके दरवाजे तक आ जाएंगे, क्योंकि बिल्डर माफिया है. किस चीज का ईडी है? बोल रहे हैं कि कुछ बिल्डर का घोटाला किस है. चीज का घोटाला है? सबूत लाना, उसको कहना ले कागज. तो आपने क्यों कांग्रेस से बीजेपी आ गए? कांग्रेस ने इसलिए की क्योंकि हमारा जो धर्म का जो करतारपुर कॉरिडोर जब नरेंद्र मोदी जी ने खुलवा दिया तो मेरी आत्मा में आया कि इससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं. इसमें तो भगवान नरेंद्र मोदी जी में भगवान की रूह है. हमारे लिए मोदी जी ने जो किया आज तक किसी प्रधानमंत्री ने